ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو۔ مورنا نے رفتار بڑھاتے ہوئے کہا اور اچانک کار ایک زہری سڑک پر موڑ دی جس کے دونوں طرف عالیشان مکانات تھے اور ان کے گرد وسیع رقبہ تاروں سے گھرا تھا۔ سڑک بل کھاتی جا رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں بے شمار راستے نکل رہے تھے۔ کار بھی تیزی سے آنے لگی، مگر مورنا نے جلد واضح کر دیا کہ وہ نہ صرف ماہر ڈرائیور تھی بلکہ ان راستوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ وہ اتنی تیزی سے دائیں بائیں بل کھاتی سڑک پر کار گھما رہی تھی کہ کوئی ناواقف شخص اس طرح کار چلا ہی نہیں سکتا تھا۔ ذرا سی دیر میں سیاہ کار نہ جانے کہاں رہ گئی۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر مورنا نے کار ایک کچے راستے پر اتار دی۔ اس نے رفتار ہلکی کر دی تھی تاکہ گرد نہ اڑے۔ وہ سست روی سے کار چلاتی ایک کاردار تاروں سے گھرے احاطے کے سامنے رک گئی۔ سال خوردہ سا دروازہ تھا۔ مورنا نے کار سے اتر کر اس کے دونوں جعلی تار دروازے کھولے اور پھر کار اندر لے گئی۔ احاطے کے وسط میں گھنے درختوں کے درمیان ایک لکڑی کا کیبن تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ اسی عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ مورنا نے مرکزی دروازہ کھولا، یہ بھی انلاک تھا۔ غالباً ایسی کوئی شے نہیں تھی جس کے لیے احاطے کو لاک کیا جاتا۔ کیبن اندر سے بھی خستہ حال تھا، ہر جگہ گرد جمی تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں بیٹھا جا سکتا۔ میں نے مورنا کی طرف دیکھا۔ اس کیبن کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے کم سے کم 2 دن محنت کرنا پڑے گی، تب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسکرائی اور دروازے کے پاس لگے 2 سوئچ والے بورڈ پر لگے دونوں سوئچز کو مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے کے عین سامنے فرش کا ایک حصہ ڈھکن کی طرح اوپر اٹھ گیا۔ اسے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ وہ مسکرائی، چلو نیچے۔ میں نے ناگواری سے دیکھا، کیا میرے لیے کوئی کھلی جگہ نہیں ہے جس چوہے دان میں ڈالا جا رہا ہے؟ تم آؤ تو صحیح، تمہیں بالکل محسوس نہیں ہوگا کہ تم کسی تہہ خانے میں ہو۔ اس کے اصرار پر میں نے بادل نخواستہ اندر قدم رکھا۔ سیڑھیاں صاف ستھری تھی اور اوپر جمی گرد کا ایک ذرہ بھی یہاں نہیں تھا۔ زمین سے کوئی 20 فٹ نیچے تہہ خانے کا فرش تھا۔ اس وسیع و عریض تہہ خانے میں سہولت کی ہر ممکن شے دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ لکڑی سے پارٹیشن کر کے 2 عدد چھوٹے بیڈ روم باتھ روم بنائے گئے تھے۔ لیونگ روم کے ساتھ کچن تھا۔ لیونگ روم میں ایک بڑے سائز کا ٹی وی اور اس سے منسلک آڈیو ویڈیو کے آلات تھے۔ ایک طرف دیوار گیر الماری تھی۔ میں اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ مقفل تھی۔ اسے مت چھیڑو، مورنا نے کہا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈال دیا تھا۔ نیچے اس نے مختصر سی بنیان پہن رکھی تھی۔ اوپر کے مقابلے میں تہہ خانے کی فضا خوشگوار حد تک گرم تھی۔ کچھ کھاؤ گے؟ بالکل، لیکن خیال رہے گوشت والی شہد نہ ہو اور میں شراب بھی نہیں پیتا۔ تب میں بٹر ایگ سینڈوچز بنا لیتی ہوں۔ وہ کچن والے حصے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دوبارہ الماری کا جائزہ لیا۔ اس کا تالا سادہ سا تھا۔ میں نے تلاش کی تو ٹی وی ٹرالی کے ایک خانے میں اوزاروں کا باکس مل گیا۔ اس میں کئی اقسام کے اسکرو ڈرائیو اور ان کے اوپنر تھے۔ میں نے چند منٹ میں الماری کا تالا کھول لیا تھا۔ مورنا کچن میں مصروف تھی۔ وہ جگہ نظروں سے اوجھل تھی، اس لیے وہ مجھے الماری کھولتے نہ دیکھ سکی۔ الماری کھلتے ہی میں دنگ رہ گیا تھا۔ اندر سلیقے سے کئی طرح کا اسلحہ چنا ہوا تھا۔ اس میں پستول بھی تھے، سیمی آٹومیٹک پسٹل، شارٹ گنز، رائفلیں، مشین گنز اور سب سے زیادہ خطرناک شہر راکٹ لانچر تھے۔ روسی ساختہ یہ RPG-70 گرنیڈ لانچر جنگوں میں استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ خاص طور سے افغان جنگ میں ان لانچرز کا بے پناہ استعمال ہوا تھا۔ افغان مجاہدین نے ان کی مدد سے طیارے اور ہیلی کاپٹر تک مار گرائے تھے۔ میں نے الماری کا لاک دوبارہ بند کر دیا اور اوزاروں کا باکس بھی ایسی جگہ رکھ دیا کہ وہ چھیڑا ہوا نہ لگے۔ پھر میں باتھ روم میں چلا گیا۔ سر اور ہاتھ پیروں میں سمندری ریت کے ذرات پھنسے تھے۔ میں نے غسل کیا اور تقریباً خشک ہو جانے والے کپڑے جھاڑ کر پہن لیے۔ باہر آیا تو مورنا کافی اور سینڈوچز کے ساتھ میری منتظر تھی۔ جلدی کرو ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں نے کھانے سے انصاف شروع کیا۔ مس مورنا، یہ ٹھکانہ کیا خاص مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ نہیں، یہ ہمارا ایک عام سا ٹھکانہ ہے، لیکن ہر ایک اسے استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ تہہ خانے کا راستہ کچھ لوگوں کے علم میں ہے۔
जोहान्सबर्ग और मुल्क भर में हमारे ऐसे कई ठिकाने हैं। तुम लोगों को इंतहा पसंद सफेदफामों और स्याहफामों से खतरा रहता है। तुम लोग अपने बचाव के लिए क्या करते हो? मैंने सादगी से पूछा। हम अपने दिफा के लिए हर मुमकिन तरीका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास असले और तरबियत याफ्ता लोगों की कमी नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारे दुश्मन ज्यादा ताकतवर नहीं है? वो न सिर्फ सफेदफामों को गुस्साते हैं बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक के इंतहा पसंद स्याहफाम ग्रोहों की मदद भी करते हैं। उसने जरा ताज्जुब से मुझे देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? मोरना, तुम्हारे ख्याल में इंतहा पसंदी इस खित्ते का बीज है? नहीं, बल्कि ये बीज बैनुल-अक़वामी ताकतें इस बर्रे आज़म में ट्रांसप्लांट कर रही हैं ताकि इस खित्ते में कोई भी मुनअज़्ज़म हुकूमत कायम न होने पाए जो इनके मफादात की राह में रुकावट बने। तुम बैनुल-अक़वामी सियासत पर खूब बोल लेते हो, इसलिए कि मैं गुज़िश्ता कई महीने से यही सियासत होते देख रहा हूँ। बैनुल-अक़वामी ताकतें खास तौर से शुमाली अमेरिका और यूरोप के ताकतवर ममालिक मिलकर अफ्रीका और किसी हद तक पसमानदा एशिया को गैर मुस्तहकम करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। मोरना बेअतबारी से हंसी। मैं नहीं समझती कि हमारा मसला इस हद तक खौफनाक है। इस मुल्क के कदीम नस्ल प्रस्त हैं जो कर्नल बोगार्ड जैसे लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। यही तो तुम लोगों की गलत फहमी है। कर्नल बोगार्ड कदीम नस्ल प्रस्तों का नहीं बल्कि साम्राज्य ताकतों का एजेंट है। इस खित्ते में सफेद फामों के खिलाफ पुरतशद्दुद तहरीक भी इन्हीं साम्राज्य ताकतों के असलहे से जारी है। इसका मकसद सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि इन ताकतों को अफ्रीका में फौजी कब्जा जमाने का मौका मिले। मोरना किसी कदर कशमकश में नजर आने लगी थी। अगर यह बात है तो कैनीमैन जैसा ज़हीन शख्स इन सब बातों से लाइल्म क्यों है? मेरा ख्याल है वो लाइल्म नहीं है बल्कि खतरे की शिद्दत को कम करके पेश कर रहा है। वरना इन मुमकिन है उसके अक्सर साथी ये सोच कर ही हौसला हार जाएं कि इनका सामना सुपर ताकतों से है। मोरना ने सर हिलाया, यही बात होगी, वरना कैनीमैन ला इल्म नहीं रह सकता है। हालांकि कैनीमैन अपने अंदर घुसे हुए गद्दारों से भी लाइल्म था। उसने मुझे मर्फी जैसे एजेंट के हवाले कर दिया। अगर खुदा की मेहरबानी ना होती तो मैं इस वक्त मरहूम हो चुका होता या कर्नल बोगार्ड की कैद में होता। मोरना ने मेरी तरफ देखा। लगता है तुम्हें इस खित्ते के मसाइल से बहुत दिलचस्पी है। मैंने सर हिलाया, बहुत ज्यादा, वरना अब तक यहां धक्के न खा रहा होता। तुम फिक्र ना करो, कैनीमैन जल्द तुम्हें जहां कहोगे वहां भिजवा देगा। इसका हुकूमत पर भी असर रसूख है। मैं लंदन जाना चाहता हूं चलते चलते। कैनीमैन तुम्हारी मदद का फैसला कर चुका है। वो मुतमईन करना चाह रही थी। मेरे ख्याल है तुम्हें सर्दी लग जाएगी। मैंने स्पोर्ट्स टाइप बुनियान से चलकते स्याह फार्म शबाब को देखकर कहा, बेहतर होगा तुम कोट पहन दो। वो मानी के अंदाज में मुस्कुराई। लगता है तुम्हें लड़कियों से दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने दूसरी बार काफी उड़ेली। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? 24 घंटे, उसने जोर देकर कहा। दिन रात समझ लो, फादर ने मुझे तुम पर मुसल्लत कर दिया है। मैं रात को अकेला सोने का आदी हूं। मैंने रुखाई दिखाते हुए कहा और उठकर टीवी चला दिया। एक न्यूज चैनल ट्यून करते ही बर्बाद होने वाली जेटी सामने आई। शोले सर्द पड़ गए थे, कहीं कहीं से धुआं उठ रहा था। एक शौक किस्म की लड़की माइक पकड़े खड़ी थी। पुलिस के मुताबिक हादसे में बोट में सवार 3 अफराद मारे गए। इनके अलावा जेटी पर खड़ी एक कश्ती का निगरान भी हलाक हुआ है। इनमें वो 2 शामिल नहीं है जो इस पीटर बोट तले कुचल कर मरे थे। मेरा ख्याल है वो बच गए होंगे। तरबियत याफ्ता आदमी थे, इतनी आसानी से नहीं मरते, और अगर मारे भी गए होंगे तो हमारे आदमियों ने पुलिस की आमद से पहले इनकी लाशें वहां से हटा ली होंगी। पुलिस भी बात छुपा रही है। इसने 2 लाशों का जिक्र गोल कर दिया जो पहले ही बोट के निचले हिस्से में टुकड़ों में बटी पड़ी थी। इन्हें भी हादसे का शिकार बना दिया। पुलिस ऊपर वालों के इशारे पर काम कर रही है। इस मामले में फौजी इंटेलिजेंस मुलव्विस नजर आती है। कर्नल बोगार्ड एक तरह से इस एजेंसी पर हावी है। फिर यहूदी भी इस चक्कर में मुलव्विस हैं। इनका असर और सूख इतना ज्यादा है कि पार्क में होने वाली हंगामा आराई और कत्लो गारतगिरी में मुलव्विस होने के बावजूद इनका कहीं नाम तक नहीं आया। मोरना ने गहरी सांस ली। यहूदी कहाँ ताकतवर नहीं है। जनूबी अफ्रीका की माईशत भी इनके जंगल में है। सोने और जवाहरात की तिजारत पर इनका कब्जा है। फिर वो चौंकी, लेकिन यहूदियों से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? पता नहीं ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। मैंने रास्ते में एक यहूदी खानदान के पास पनाह ली थी। लिंडसे वाल्टर नामी औरत मुझ पर मेहरबान थी और वो मुझे जोहान्सबर्ग तक छोड़ने आ रही थी कि रास्ते में हम पर हमला हुआ। इस हमले में वो मारी गई और इसके बाद से यहूदी तुम्हारे पीछे हैं। मोरना ने गौर किया। इतनी सी बात पर यहूदी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ सकते हैं कि एक यहूदी औरत ने गैर यहूदी की मदद की। खुदा ही जाने क्या बात है। मैंने गहरा सांस लिया। वैसे क्या तुम मशहूर वाल्टर खानदान के सरबराह जॉनी वाल्टर से वाकिफ हो? इसे कौन नहीं जानता, मोरना बोली। इसका शुमार दुनिया के चंद अमीर तरीन लोगों में होता है। जोहान्सबर्ग के महंगे तरीन इलाके में इसका महल नुमा मकान है। जनूबी अफ्रीका की शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसमें जॉनी वाल्टर का सरमाया लगा हुआ ना हो। ये लिंडसे वाल्टर उस जॉनी की बेटी है। मैंने बताया तो मोरना भूंज के रह गई थी। तुम्हारा मतलब है सगी बेटी? सगी और एक ही बेटी।
कानून के मुताबिक इसकी दौलत की तीसरी हकदार थी, लेकिन अब खुद उसकी दौलत इसके वरासा में तकसीम होगी। मेरे खुदा, इतनी बड़ी बात और किसी अखबार तक में इसका जिक्र नहीं हुआ? नहीं, टीवी पर मैंने खुद देखा था। इस वक्त शायद तुमने गौर नहीं किया था। उसने सर हिलाया। मैं इस वक्त जोहान्सबर्ग से दूर थी। बहरहाल जॉनी वाल्टर की अकलौती बेटी का मारा जाना मामूली वाकया नहीं है। क्यों? क्या इससे आसमान हिल जाता या जमीन फट जाती? मजाक मत करो। जॉनी हुकूमत को हिला कर रख देता। इसने तो कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, अंदरूनी खाना वो कुछ न कुछ कर रहा होगा। यहूदियों का खुद हरकत में आना उसकी निशानी है। क्या वो तुम पर शक कर रहे हैं? मोर्ना ने गौर से मुझे देखा। एन मुमकिन है। मैंने फौरन तस्लीम कर लिया। मैं इसे असल बात नहीं बता सकता था कि यहूदी इसलिए मेरे दर पे थे कि मैं जॉनी वाल्टर का वारिस भी था, इसके बेटे की औलाद, और वो अपने मालो दौलत में किसी मुसलमान को हिस्सेदार बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे बढ़कर इनके लिए सुबकी की बात और क्या हो सकती थी कि इस कट्टर यहूदी खानदान का एक लड़का मुसलमान था। वो इसको मिटाने पर तुल गए थे, हरफे गलत की तरह। टीवी वाले क्या सराहियां कर रहे थे कि इस वारदात के पसे पुष्ट क्या अवामिल थे। अभी तक यही तय नहीं हुआ था कि यह हादसा था या कोई तकरीब कारी की वारदात। पुलिस वाले भी कंफ्यूज थे और मजीद तहकीकात पर जोर दे रहे थे। मोर्ना ने बोर होकर एक तफरीही चैनल लगा लिया जहां से तफरीह के नाम पर वाहियात प्रोग्राम दिखाया जा रहा था। मैं खड़ा हो गया। अब मैं जरा आराम करूंगा। और टीवी देखो, कितना जबरदस्त प्रोग्राम आ रहा है। शुक्रिया, मुझे शौक नहीं है। हाँ, मेरे लिए किसी और लिबास का इंतजाम हो सकता है? ये तो बिल्कुल खराब हो गया है। मैं मंगवा लूंगी, उसने स्क्रीन पर नजर जमाते हुए कहा। अगरचे भाग दौड़ जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया था, इसके बावजूद मैं थकन महसूस कर रहा था। नहाकर और पेट भर कर खाने के बाद गनूदगी सी तारें होने लगी थी। अपने बेडरूम में जाकर मैंने दरवाजा बंद किया और कमीज उतारने लगा कि इसमें मोबाइल की मौजूदगी का एहसास हुआ। पिस्तौल समंदर में गिर गया था जब मैंने बोर्ड के तसादुम से पहले समंदर में छलांग लगाई थी, लेकिन यह मोबाइल जेब में रह गया था। मेरा ख्याल था कि पानी में जाने के बाद वो बेकार हो गया होगा, लेकिन जब इसका खुलने वाला हिस्सा हटाया तो अंदर रोशनी चल उठी। शायद मोबाइल वाटर प्रूफ था, इसलिए पानी से खराब नहीं कर सका। मोबाइल की स्क्रीन पर सिग्नल भी मौजूद थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि इसकी मदद से मैं पाकिस्तान में काजल को कॉल कर सकता था। मैंने तजर्बे के तौर पर जमशेद पैलेस का नंबर मिलाया और बेल जाने लगी। इसे सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा था कि मैं काजल से बात करूंगा। अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले उससे बात हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने अरसे से उससे बात नहीं हुई है। कान उसके लहजे का तरन्नुम और सांसों का साज सुनने के लिए तरस गए थे, लेकिन फोन किसी मर्द ने उठाया। हेलो, उसने कहा। मुझे शुबा हुआ कि वो जावेद था। मुझे काजल से बात करनी है, मैंने मुमकिन हद तक लहजा बदल कर कहा। कौन हो तुम? जावेद का लहजा सख्त हो गया। इस बार मैंने उसे वाज़ेह तौर पर पहचान लिया। काजल का नाम इतनी बेतकल्फी से कैसे लिया? मुझे उसका हक है जावेद, मैंने आहिस्ता से अपनी असल आवाज में कहा। कौन? यूसुफ तुम? वो बुखला गया था। तुम तो मर गए थे। मैंने तलखी से उसका जुमला पूरा किया, लेकिन तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। ऐसा मत कहो, हम इख्तलाफात सही, लेकिन हम में से कोई तुम्हारी मौत का ख्वाह नहीं है। उसने पुरखलूस होने की कोशिश की, लेकिन अपने लहजे की बनावट नहीं छुपा सका था। चलो मान लिया, अब मेरी काजल से बात करवाओ। वो क्या है ना, वो इस वक्त घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। उसने अयारी से कहा। इसके पास मोबाइल होगा, इसका नंबर दे दो। इत्तिफाक से उसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि रात तक फोन कर लूं, वो वापस आ जाएगी। ओके, ये बताओ कि हालात कैसे हैं? उसने ठंडी सांस ली। यूसुफ, तुम्हारे गायब होने के बाद से ऑर्गेनाइजेशन के हालात पे कर रहे हैं। सब अपनी जगह लूट मार कर रहे हैं। किनशिपमेंट के सारे में जा रही है। मेरे जाने से क्या फर्क पड़ा है? कारोबार तो जुनेद और तुम चला रहे थे, मैंने तंज किया। फिर भला कारोबार क्यों खसारे में गया? वो हिचकिचाया। दरअसल कारोबार में शरीक अहम लोग ये समझने लगे कि तुम्हें हमने गायब किया है, इसलिए आम बगावत फैल गई। खासतौर से यूरोप का यूनिट मुकम्मल तौर पर टूट गया है। मिडिल ईस्ट का यूनिट भी बराए नाम फाल है, बस अमेरिका का यूनिट काम कर रहा है। तो क्या हुआ? लोगों के जाने से कारोबार खत्म नहीं होता। दूसरे लोग लाओ, नया यूनिट बनाओ। शायद तुम भूल रहे हो, पापा ने यह बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया था, उसने सर्द लहजा में कहा। और शायद तुम भी भूल रहे हो कि पापा ने यह कारोबार किसी हमदर्दी या मोहब्बत के बिना पर मेरे नाम नहीं किया। इन्हें तुम लोगों के लिए एक ढाल दरकार थी, मैंने तलखी से कहा। इसलिए मैंने कभी इस कारोबार या इसके नफा से सरोकार नहीं रखा, बावजूद इसके कि मैं इसका मालिक हूं। ये खुशफहमी तुम्हारे साथ और भी कई लोगों को हो गई थी। जावेद ने काटदार लहजा इख्तियार किया। यूसुफ, ये सब हमारे बाप का माल है, मुझे भी हराम से कोई दिलचस्पी नहीं है। जमशेद अली की जिंदगी से अगर कोई चीज मुझे मिली है तो वो काजल है। जावेद को राया, काजल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अभी तो तुम खुद से रिश्ता तस्लीम कर रहे थे। काजल हमारी बहन है, हम जहां चाहेंगे उसका ब्याह करेंगे। अब पाकिस्तान आने की कोशिश ना करना,
मरना चाहो तो अलग बात है। जावेद यकदम भड़क गया था। इसने फोन बंद कर दिया। इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे, यानी पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7 बजे थे। मैंने फैसला किया कि अब 8 बजे फोन करूंगा। काजल इस वक्त घर आ चुकी होगी, लेकिन मुझे जावेद की तरफ से खदशा था कि वो कोई गड़बड़ करेगा। खैर जो होगा देखा जाएगा, मैंने सोचा। रोशनी बुझाकर सोने के लिए लेट गया। इस तहखाने में घुटन का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि फिजा में ऐसी ताजगी थी जैसे मैं किसी खुली फिजा में हूं। सोने से पहले मैंने एहतियातन मोबाइल ऑफ करके बिस्तर तले छुपा दिया। मुमकिन है कैरीमैन का इसको ख्याल आ जाए और वो मुझसे मोबाइल वापस ले ले। इन लोगों के दोस्ताना रवैये के बावजूद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इनकी तरफ से पाबंद हूं। वो मुझे असलिया या ऐसी कोई शय देने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं किसी दूसरे से राब्ता कर सकूं। शाम को आंख खुली तो सर पर जैसे ढोल बज रहे थे। जरा देर से समझ में आया कि दरवाजा बजाया जा रहा था। मैं अंगड़ाई लेते हुए बुलंद आवाज से बोला, उठ गया हूं, तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं। बाहर से मोरना की आवाज आई, चेंज कर लो। इस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि लिबास बदलूं। मैंने उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। मोरना शायद नहा चुकी थी। उसने सफेद मिनी स्कर्ट के साथ बंद होने वाली शर्ट पहन रखी थी। हस्बे मामूल ये दोनों चीजें इतनी चुस्त थीं कि इसका सरापा कपड़ों से बगावत पर आमादा था। मैंने उसे छोटा सा बैग लिया और इससे पहले कि दरवाजा बंद करता वो अंदर आकी। उसे तारीफी नजरों से मेरे जिस्म की तरफ देखा। वाह क्या स्मार्ट बॉडी है, प्लीज मुझे चेंज करना है, मैंने जिस होकर कहा। तो करो, वो बेपरवाही से बोली। ओके तुम यहां रहो। मैंने बैग से एक पतलून कमीज निकाल कर बाथरूम का रुख किया। जब कपड़े बदल कर आया तो वो जा चुकी थी। बैग में एक गर्म स्लीपिंग सूट और एक इजाफी पतलून कमीज थी। दोपहर का खाया पिया हजम हो चुका था और मुझे अब भूख लग रही थी। दूसरे हाथ में उसने चिप्स का पैकेट से संभाल रखा था। मैंने किचन में देखा, 5 डिब्बा बंद खुराक थी। मैंने एक डिब्बा तले हुए आलूओं का निकाला। 1 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया और चाय का पानी कैतली में रखकर लिविंग रूम में चला आया। मुर्दा खफा नजर आ रही थी, शायद मेरी रुखाई पर या दिफा पर जो मैं उसकी पेशकदमी के खिलाफ किए हुए था। टीवी पर खबरें आ रही थी और बोट के हादसे का ताल्लुक भी मेरी जात से जोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक तबाह होने वाली बोट पर मैं था और मुमकिन तौर पर इस तबाही में मेरा हाथ भी था। लाशों के बारे में पुलिस का साबका बयान बरकरार था। अलबत्ता तबाहशुदा बोट के डूब जाने वाले मलबे से असले से भरा एक संदूक बरामद कर लिया गया था। असले के बारे में पुलिस को शुबा था कि वो तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल किया जाता। मैंने सजाया लहजे में कहा, क्या शुबा है? क्या कुछ असलिया तामीराती कामों में भी इस्तेमाल होता है? जो असलिया हुकूमत के पास हो वो अच्छा होता है, बाकी असलिया दहशतगर्द होता है, मोरना बोली। हालांकि इंसानियत को सबसे ज्यादा जख्म हुकूमती असलहे से लगे हैं। जंग अजीम में क्या हुआ? आज भी दुनिया भर में जारी जंगों में बेगुनाह लोग ही ज्यादा निशाना बनते। असलहा अच्छी चीज नहीं है, मोरना ने घूंट पड़ा, लेकिन मौजूदा दौर में इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे अपनी हिफाजत के लिए असलहा चाहिए, अब इसकी क्या जरूरत है? क्यों? जब दुश्मन अचानक सर पर आ जाएगा तब असलहे की जरूरत महसूस होगी। मैंने मुंह बनाया, यहां पर असलहा नहीं है, मंगवाना पड़ेगा। मुर्दा ने सफाई से झूठ बोला, वैसी जगह तक दुश्मन की रसाई नहीं है, इसलिए मुतमईन रहो। कैनीमैन ने भी यही कहा था और मैं मरते मरते बचा। जब तक तुम लोगों में गद्दार हैं खतरा रहेगा। मुझे या तो असलहा दो या फिर मैं चाहता हूं मैं इस तरह गैर यकीनी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं बात करती हूं। मोरना ने अपनी कमीज के गिरबान से एक दंदना से मोबाइल बरामद किया और उस पर नंबर मिलाने लगी। फादर में मोरना, जोसेफ असलहा चाहता है अपनी हिफाजत के लिए, वो हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। वो चुप होकर सुनती रही। ठीक है फादर। उसने फोन बंद कर दिया और मेरी तरफ देखा। आओ मेरे साथ। वो मुझे अलमारी तक लाई, इसके पास चाबी थी। उसने अलमारी खोली और मुझसे बोली, अपनी पसंद का असलहा ले लो। मैंने एक नजर अलमारी में सजे असलहे पर डाली। तुम तो कह रही थी कि यहां असलहा नहीं है। वो बेपरवाही से बोली, हाँ मैंने झूठ कहा था। मैंने असलहा खाने का मुआयना किया और एक अदद इशारिया 38 का पिस्टल निकाल लिया। इस मुख्तसर से लेकिन ताकतवर पिस्टल में 12 गोलियों का क्लिप लगता था। इसके बावजूद ये बाआसानी पतलून की जेब में समा सकता था। इसकी बेमिसाल कारकर्दगी में कई बार खुद मुलाहिजा कर चुका था। छोटा होने के बावजूद यह ताकतवर पिस्तौल था। इसकी गोली 50-60 फुट तक मौलक साबित होती थी। मैंने पिस्तौल के साथ इसके 3 इजाफी क्लिप भी निकाल लिए। बस इस पिस्तौल के लिए इतना बेताब थे? मुर्ना ने मुस्कुरा कर कहा, यह अच्छा हथियार है। मैंने जवाब दिया, जाहिर है मैं बजोका या खुदकार राइफल हर जगह नहीं ले जा सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया। मैंने पिस्तौल पतलून की जेब में रख लिया और क्लिप पे अपने बेडरूम में रख दिए। खाना में खा चुका था। मोरना ने मेहरबानी करके काफी बना दी और दोबारा बियर का टिन खोल लिया। इसकी आंखों से लग रहा था कि उसे किसी कदर नशा हो रहा था। कालबन मेरी बेअतनाई के गम को वो शराब में डुबो रही थी। कैनीमैन से कब मुलाकात होगी?